ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰॉड ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ट्रायंगुलर लैमिना शीट कह दो कि यूनीफॉर्म ट्रायंगुलर शीट आ ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगा। पहला पिछले चैप्टरां विच आ चुकिया हैगा। ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ सेंट्रोइड ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ट्रायंगल ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਉਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਰॉड ਵਾਂਗੂ ਵੀ यूनिफॉर्म रॉड वांगू बिहेव करेगी। फिर सेंटर ऑफ ग्रैविटी सेंटर च होगा। यूनिफॉर्म रॉड सेंटर ऑफ ग्रैविटी सेंटर विच हुंदा जी। फिर होर स्ट्रिप बना ली आपां ने, ये भी सेंटर च आऊगा जी। फिर होर स्ट्रिप बना ली आपां ने, ये सेंटर च आऊगा। इदां ही आपां ट्रायंगल नूं काफ़ी सारियां स्ट्रिप दे विच तोड़ दो तां जे सेंटर ऑफ ग्रैविटी फिर जो है वो इत्थे आऊगा। मतलब सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वो ए लाइन के उपर आऊगा। ये लाइन की ने सारे मिड पॉइंट ने, मतलब कह लो कि इत्थों तो लैके मिड पॉइंट तक ज्वाइन हो रही है। तो ये लाइन होगी मीडियन। तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी पता नहीं हजे कित्थे आऊगा, ये किते होगा। ये लाइन के मीडियन के उपर किते ना किते होगा। ये रफ डायग्राम सी, प्रॉपर फेयर डायग्राम मेरी इदां बनेगी जी, बिल्कुल सेम जिवें पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पैरलोग्राम लॉ किया सीगा। एक स्ट्रिप लै ली आपां ने समझाउण वास्ते जिहड़ी पैरलल टू, इस स्ट्रिप का नाम की हैगा पी। ये पैरलल टू BC है। तो जो सेंट्रोइड होएगा वो मीडियन के अलोंग होएगा। चलो लिखना आपां, लेट अस consider a triangular lamina ABC। ये यूनिफॉर्म है। Let us divide it into number of strips parallel to BC। दूसरे पैरल आप स्ट्रिप से डिफाइन करता। Therefore a strip will behave like यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड वांगू बिहेव करेगी। यूनिफॉर्म रॉड whose center of gravity lies at midpoint। therefore in a similar way we can say that center of gravity lies on median AD।
ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਇਹ ਫੇਅਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਾਤਾ P ਡੈਸ਼, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ E ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਫੇਅਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ABC, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ABC into number of parallel strips parallel to number of strips parallel to AC. A strip will behave like a uniform rod, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ verting whose CG lies as center. In a similar way, we can say that CG lies on median BE. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ट्रायंगल के केस से ट्रायंगुलर शीट है या ट्रायंगल लैमिना है यूनिफॉर्म, तो उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो पक्का सेंट्रोइड ते लाई करूगा। इस तो बाद लिखना आपका देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियन इंटरसेक्शन पर लाई करेगा। देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड के ऊपर लाई करेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये ट्रायंगल लैमिना सीगा जे ध्यान दे विच होवे, यूनीफॉर्म रॉड विच भी कीता सी आपां ने, पैरेललोग्राम दे विच भी कीता सीगा कि आपां ने रॉड दे इक्विवेलेंट कोई चीज बनाई सी आपां, उवें यूनीफॉर्म रॉड दे इक्विवेलेंट किवें बनाया सी आपां ने कि रॉड लै लवो जिहदा वेट W हैगा, जां कोई एक लाइन ਜਿਹੜੇ एंड पॉइंट्स रॉड नाल सेम होण, उन्हां दे एंड पॉइंट्स ते W/2 वेट सस्पेंड कर दो, हैंग कर दो, इक्को गल होगी। पैरेललोग्राम दे विच किहा सी आपां ने जां कोई पैरेललोग्राम शीट आ, इहदा वेट की होऊगा W होऊगा, जां शीट ना लो बस तुसीं खाली आ सारा अंदर, बस कॉर्नर दे चारे कॉर्नर ते W/4 वेट ला दवो, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਹਦਾ वेट W होवे, सेंट्रोइड ते एक्ट करेगा। ये सेंट्रोइड ते एक्ट कराया अपन, थोड़ा ट्रायंगल टेढ़ा बना लीजिए। ये फर्क समझना ध्यान।
ਇਹਦਾ weight जो है W है। जा सेंट्रोइड हो गया है, तिन्ने भी तीजा भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रायंगुलर शीट है, ਇਹਦਾ weight सेंट्रोइड ਤੇ एक्ट करेगा, ਜਾਂ ਇਦਾਂ कह लो ਇਹ इक्विवेलेंट किहदे होगा, ਇਹ ट्रायंगुलर शीट नहीं है जी, ये खाली आ। शेप जो है वो ਇਹਦੇ वर्गी है। आ ट्रायंगल की शेप, जे आप ए बी सी ते ए उपर भी W/3 वेट ला दिए, बी उपर भी W/3 वेट ला दिए, सी उपर भी W/3 वेट ला दिए, तिनों उपर इक्को जिहा वेट ला दिए, तो ਇਹਦਾ रिजल्टेंट भी मतलब ए भी ਇਹਦੇ वांगू ही बिहेव होगी, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी। इक्विवेलेंट किवें हैगा, ਇਹਦਾ जो वेट है वो सेंट्रोइड ते एक्ट कर रहा है ओवरऑल, तो ये भी तिन्ना दा ओवरऑल वेट भी सेंट्रोइड ते ही एक्ट करेगा, तो आप कहांगे इक्को जिहा बिहेव करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, तां ही गल पर जोर पा रहे हैं। आप नूमेरिकल इनू इदां कन्वर्ट कराया करांगे नूमेरिकल कि ये इक्को चीज़ हैगी आ, चाहे आ सॉल्व कर लो चाहे आ सॉल्व कर लो, मुझे पता होगा तां ही ध्यान च रहूगा, नहीं तो फिर जिवें पहला आप नूमेरिकल रट्टे मारे हैं फिर इस भी रट्टा मारना पैना जी। हुण ये किवें शो करा, देखो इक्विवेलेंट किवें है। इक्विवेलेंट किवें होगा कि ਇਹਦਾ weight W सेंट्रोइड ते एक्ट कराना, क्योंकि ਇਹਦਾ सेंट्रोइड ते एक्ट कर रहा है, तो ਇਹਦਾ weight भी आप सेंट्रोइड ते एक्ट कराना है। तो लेट कर लो, let us consider W/3 weight, W/3, let us consider W/3 weight at each vertices A, B, C। ये मान लिया हरेक ते आपां W/3 पाता। हुण इन्हां दोनों रिजल्टेंट कित्थे आऊगा, वेट सेम होना, पहला भी किया जे वेट सेम होंगे तो रिजल्टेंट मिड पॉइंट ते एक्ट करेगा, तो कितना होगा, दोनों को ऐड कर देवांगे। देन रिजल्टेंट ऑफ वेट W/3 at B and weight W/3 at C is 2W/3 at D, where D की होगा, where D is midpoint of DC। ये दोनों पता होना चाहिए, पहले भी कर चुके हैं, पर पता होना चाहिए जी, तो ही प्रॉपर समझाओगे। डी मिड पॉइंट किवें आ गया, मैं दोबारा दस देना, रिजल्टेंट कित्थे एक्ट करता हुंदा, P इंटू AC Q इंटू BC, पैरेलल फोर्स का कंसैप्ट आ। तो ये आया सीगा W/3 इंटू BD, W/3 इंटू CD, ये कट गया, तो BD इक्वल टू CD हो गया, तो D नूं की कहांगे आपां, मिड पॉइंट कहांगे। चलो ठीक है जी, मिड पॉइंट हो गया। तो दो फोर्स आ सिंगल फोर्स बना ली, हुण आ दो दा रिजल्टेंट करते हैं, ज्वाइन कर लिया, जिहदा रिजल्टेंट G पॉइंट ते मान लिया, आ भी G ले लिया। देन जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ वेट W/3 at A and 2W/3 at B, D at D इस A की होगा W होएगा, तो दोनों जोड़ लो जी, कितना वेट रिजल्टेंट बनेगा, 3W/3 W हो जाएगा, वो किहड़े पॉइंट ते होगा, G ते, W at G। हुण G मिड पॉइंट नहीं कह सकते असीं कि दोनों वेट बराबर नहीं है, आ वेट 2W/3 आ, ये W/3, फिर G किवें कड्डांगे, वेयर
आ लावांगे पैरेलल फोर्स का कंसैप्ट वेयर W/3 into AG is equals to 2W/3 into GD। ये कट गया जी, तो इतों कितना आ गया AG बटा GD is equals to 2/1। जे ये रेशो 2/1 होवे, ये किहदे विच हुंदी आ? ये सेंट्रोइड हुंदा, सेंट्रोइड बिकॉज मीडियन नूं 2:1 च डिवाइड करदा हुंदा। देयरफॉर G की बन जाएगा, therefore G is centroid of triangle ABC। तो दोनों गल्लां आपस च इक्विवेलेंट हो गई बिकॉज इहदा रिजल्टेंट भी सेंट्रोइड ते एक्ट कर रहा है, सेम W, ये भी तो रिजल्टेंट सेम W एक्ट कर रहा है। तो दोनों गल्लां इक्वल किवें ने कि ट्रायंगुलर लैमिना होवे जिहदा वेट W हैगा, जां तिन्ने वर्टिसिस से W/3 वेट पा दिए। ये ट्रायंगल लैमिना नहीं हैगा, ये शीट नहीं है, खाली अंदरों बस आप A B C ते वेट रखिया ते तिन्ने इक्वल वेट पा दिया वर्टिसिस ते, तां भी ये दोने गल्लां आपस च इक्विवेलेंट ने। तुसीं अपने हिसाब लिख लियो जी जे पिछे कीता आपां ने। चलो अगे देखो, ये ट्रायंगल दा सीगा जी। हुण आपां की करना हैगा जी, ट्रायंगल दा ही करना हैगा, पर यह ट्रायंगल जिहड़ा हैगा ये हॉलो आ, मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कढना आपां, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड्स इन शेप ऑफ triangle, center of gravity of rods in shape of triangle। ये किवें आ? तीन rods ने, जे पहली गल डायग्राम प्रॉपर लगो ना पता डायग्राम है बन किवें रही आ। पहला ट्रायंगुलर शीट की गल की, दूजा की किया कुछ भी नहीं हैगा, बस वर्टिसिस ते वेट लमकाए ने आपां ने। तीजा हुण की हैगी आ रॉड्स ने ट्रायंगल शेप, मतलब ਇਹਦਾ weight ਆ, ਇਹਦਾ weight ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ weight ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੈਪਟਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫੋਰਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ AB जो है वो लेंथ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਂ BC कह ਲਵੋ, BC लेंथ ਆਪਾਂ A मान ली, इदी मानते ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ A ਸਾਹਮਣੇ A ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, B ਸਾਹਮਣੇ B, C ਸਾਹਮਣੇ C, B ਸਾਹਮਣੇ B, C ਸਾਹਮਣੇ C, ਤੇ AC ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ B ਅਤੇ AB ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ C, ਇਹ ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈ, ਲੈਟ ਸਮਾਲ W ਜਦ कैपिटल W ਪਾ ਲਓ, कैपिटल W भी वेट पर यूनिट लेंथ। हुण इत्थे प्रॉब्लम आऊगी जी, एक कंसैप्ट पहला पढ़िया सी, समझा भी ध्यान नाल। उत्थे चैप्टर जिथे 7 स्टार्ट किया सी आपां ने, उह च क्वेश्चन आया सीगा जी, ये वेट पर यूनिट लेंथ आपां मन्निया सीगा कि सारे एकसार मोटियां ने, तीन वेट मनण दी बजाए W1 W2 W3 इदां वेट मनण दी बजाए एक वेट नाल ही तिन्ने वेट कढ सकदे, वो वेट पर यूनिट लेंथ मान लो। जे 1 सेंटीमीटर का वेट W हैगा तो A सेंटीमीटर का कितना होगा AW। देयरफॉर वेट्स ऑफ BC AC एंड AB आर, ने वेट्स की बन गए AW BW एंड CW रिस्पैक्टिवली।
ये यूनीफॉर्म ने रॉड्स, तो ਇਹਦਾ वेट जो है वो सेंटर ਤੇ एक्ट करेगा, ਇਹਦਾ वेट भी सेंटर ਤੇ एक्ट करेगा, ਤੇ ਇਹਦਾ वेट भी सेंटर ਤੇ ही एक्ट करेगा। हम करना की है, तीन फोर्स आ गई, जिमें आप इक्विवेलेंट वाले केस देख रहे थे। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ W/3 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 ਤਿੰਨ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਵੇਟ ਲਾਤੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੋ ਫੋਰਸ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, वो आप ही बन जाऊगा जी। तो देखो ध्यान, वो करते हैं आप अगे किता। ये मिड पॉइंट आ, ये मिड पॉइंट्स ने। देयरफॉर लेट कर लिया आपने, लेट DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC AC AB रिस्पेक्टिव। ये मिड पॉइंट्स माने आप, तो होगा ठीक है। मिड पॉइंट TW आऊगा, ये BW आऊगा, CW आएगा। उस तो बाद ये पॉइंट ले लिया आप वैसे ही अपने वालों, FG पॉइंट ले लिया। नाउ रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट किधर कह रहे हैं? CW एट F, जो CW F ते है, एंड BW एट E, जिहड़ा BW E ते इज, वो की होगा? दोने ऐड कर देवांगे। रिजल्टेंट सीधा P प्लस Q हुंदा जी। वो की होगा? रिजल्टेंट C प्लस BW इत्थे एक्ट करेगा एट G। G किवें कड्डांगे? दिस फोर्स इंटू दिस फोर्स, मतलब CW इंटू G FG इक्वल्स टू BW इंटू GE, P इंटू AC, Q इंटू BC। WW कैंसिल हो गया जी। इत्थों कितना आ गया अपने को? GE FG बटा GE जो है ये B/C बन गया। आप देखना कि सेंटर ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ये H पॉइंट ले लिया अपने, दो फोर्सा बन गई। ये फोर्स ए कितना वेट कढ़िया आप, ये H पॉइंट आ, सॉरी ये है B+C W। Therefore resultant of B+CW at G and AW at D इस ए की होगा रिजल्टेंट। तिने ऐड कर देवांगे, दोने ऐड हो जाएंगे। ए की आऊगा A प्लस B+CW, कितने आऊगा? एट H, ये H ते आऊगा। हुण H की हैगा वो देखना अपन। Therefore ए आऊगा B+C W इंटू GH, P इंटू AC, Q इंटू BC, AW इंटू HD। तो ये बन गया W तो कट गया जी, ये बन गया GH
अपॉन एच डी इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस सी। आह चीज़ बन गई। हुण आह गल नहीं समझ आ रही क्योंकि गल पढ़ी भी नहीं हुई आपां ने कि आह की बनदा। जे पहला बनया सी ना अपने कोल ए जी अपॉन जी डी 2/1 ये लग गया सी कि सेंट्रॉइड है। नाले आपां देख लिया सी उहदे विच कि आह पॉइंट की आया सी, उस केस मिड पॉइंट आया सीगा। तो मिड पॉइंट पिछली गल कर रहे हैं, पिछली वो मिड पॉइंट रखी, उस केस च ये मीडियम बन गया। फिर मीडियम उपर जो 2:1 च डिवाइड करेगा उन्होंने सेंट्रोइड कहांगे। ये आप पढ़िया सीगा। तो इत्थे डिसाइड करना है कि ये पॉइंट का नाम की किहड़ा पॉइंट आऊगा। तो पॉइंट निकलता गया कि एच पॉइंट किद्दां होगा कि जी एच अपॉन एच डी जो है वो ए अपॉन बी प्लस ही होगा। पर ये गल समझ नहीं आ रही कि एच पॉइंट किहड़ा होगा। ये हजे गल प्रॉपर लगी नहीं पता। फिर हम प्रॉपर समझने वास्ते इत्थे आ रहे हैं, एक डायग्राम होर बना रहे हैं। ये डायग्राम मैं रब कर देना जी। एक डायग्राम होर, दोनों डायग्राम फेयर बन गई। ये डायग्राम बना लियो। ज्वाइन कर रहे हैं। इत्थे वेट तो पा लो, चलो ये ए डबल्यू आ, इत्थे सीगा बी डबल्यू, इत्थे सीगा सी डबल्यू, बस 3 वेट पा लियो। आपां ये डिसाइड करना है कि जो डी जी आ उन्होंने की कहांगे। आह कढ़िया है आपां ने, डी जी नूं की कहांगे। आ चीज़ कढ़ी हुई है आपां ने। इत्थों नहीं कुछ क्लीयर हो रहा आपां नूं। तो नाउ जो एफ जी अपॉन जी ई है ये बी अपॉन सी है। देखियो ध्यान, बी की अपने कोल बी डिस्टेंस किहड़ा मन्निया आपां, आ डिस्टेंस बी मन्निया, ए सी ओवर ते सी किनू मन्निया आपां ने ए बी। आ ए बी आ डिस्टेंस सी है, ये मन्निया है पिछे आपां ने। एक ट्रायंगल च प्रॉपर्टी सीगी पहला भी आपां यूज करी सी कि ट्रायंगल दे विच इहदे नाल दा कंसैप्ट यूज कीता, प्रॉपर ने यूज कीता सी कि मिड पॉइंट जे आपां ज्वाइन करांगे दो साइडां दा, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। मिड पॉइंट्स ने आ इहदा मिड पॉइंट आ, आह इहदा मिड पॉइंट। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। DE जो है वो पैरेलल टू BC होगी एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। जो DE है वो हाफ ऑफ BC होगी। ये 10th क्लास का कंसैप्ट है। आ दो मिड पॉइंट ने, जे आ दो मिड पॉइंट ने तो आ जिहड़ा लाइन हैगी आ लाइन AC दे पैरेलल होगी अते आह लाइन का डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ AC आऊगा। मतलब आपां उपर नीचे हाफ ऑफ पा लिया, कोई फर्क नहीं पैंदा, हाफ ऑफ कैंसल हो जाएगा। हाफ AC की होगा DF होगा, उमी हाफ AB की होगा। आ दोनों मिड पॉइंट ने, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो DE जो है वो हाफ ऑफ AB बनेगा, A बन जाएगा DE। ताकि शो हो गया अपने को FG अपॉन GE इज इक्वल टू DF अपॉन DE। तो ये चेक कर ही लिया होगा। वैसे ये जोमैट्रिकली प्रूव कर रहे हैं, आप जोमैट्रिकली प्रूव कर रहे हैं तो जोमैट्री दी प्रॉपर्टियां काफ़ी आ रही हैं जो 10th लेवल दी है। ये भी जोमैट्री दी प्रॉपर्टी होंदी है। की प्रॉपर्टी होंदी है, इत्थों देख के आपां कुछ आइडिया ला सकते हैं। वो की आइडिया ला सकते हैं ये भी लिख लियो साइड पे। जे अपने कोल एंगल बाइसैक्टर होवे, आ लाइन एंगल बाइसैक्टर मतलब एंगल बराबर हिस्से में वंड रही होवे, ABCD लिख लियो। AD जो है जे यह एंगल बाइसैक्टर होवे, एंगल बराबर हिस्से में वंड रही है तो AB अपॉन AC यह BD अपॉन DC होगा। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये एंगल बाइसैक्टर वास्ते बराबर होंगे। तो गौर ना देखिए आप
मतलब जे आह साइड पहला आई है तो नीचे भी आई साइड लैनी है पहला, मतलब ए बी अपॉन ए सी तो बी डी अपॉन डी सी हो, सी डी अपॉन बी डी ना हो। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਏ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਡੀ ਐਫ अपॉन डी ई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन जी ई, डी एफ अपॉन डी ई इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी ई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, डी जी ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਲਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੋ ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਟ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਦੋ ਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸੈਂਟਰ। ਦੇਅਰਫੋਰ center of gravity lies on in center of triangle। ਇਹ ABC ਦਾ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ, DEF ਦਾ। CG lies on in center of triangle DEF, that is center of gravity lies on in center of median triangle। ਇਹ DEF ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ median triangle, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।